सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हैं। बता दें यहाँ पे भारत नेपाल दोस्ती करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसको संबोधित कर रहे हैं डॉक्टर विजय जोली, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा से। आइए चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है और भारत नेपाल दोस्ती को लेकर क्या कुछ कहना है सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, और नेपाल से जो मेहमान हमारे देश में आए हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं। में उपस्थित हो चुके हैं। हम जोरदार ताली से आनंद कार्की जी को स्टेज पे स्वागत करते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सभी नेपाल से आए जो अतिथि हैं वो यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और दिल्ली स्टडी ग्रुप यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भारत के निवासी भी जैसे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं। Hello. Now, a very warm good evening. Today on this very special day of the 8th September 2022, we are here in this Deputy Speaker Hall of the Constitution Club of India to release a very historic song, maybe for the first relationship of a two most friendly nation in the world, India and Nepal. Long live Indo-Nepal friendship. With these words, we have our singer here with us today, who sang this song, Nepal Bharat Ki Dosti. May I request all of you to join with me to give a round of applause when we welcome our singer, respected Anand Karki ji. I request Dr. Vijay Joly, the president of the Delhi Study Group, will be organizing this, to welcome Anand Karki ji with the flower bouquet. Our respected and honorable Minister of State for External Affairs, Dr. Rajkumar Ranjan Singh ji will be with us. But before that, our very respected singer from Nepal has brought the love and affection of Nepal as a symbol of the garland of Rudraksha from Pasupati to give our guests on the dais. So may I now request our team of the volunteers to bring this, और विशेषकर हमारे स्टेज पर जो 3 गेस्ट के लिए उन्होंने विशेषकर and he will be joined by Mr. Prakash Babu Thapa from Nepal. Prakash Babu Thapa from Nepal, and senior singer Anand Karki ji will now first give this garland, the Rudraksha ki mala, to our respected Ambassador of Nepal, His Excellency and also the symbol of Nepal, Mount Everest, the Nepali topi. And also we are going to give this honor to our respected Member of Parliament, guest of honor, Honorable Bhubaneswar Kalita, the Member of Parliament in Rajya Sabha and a great leader. We will be very soon, in a minute. He is already here. Maybe we can clear the way to our minister to come in. Can you please? Sir.
Dr. May I request you to maybe bring the minister? He just went. So, तो आप देख सकते हैं कि भारत नेपाल दोस्ती कार्यक्रम आयोजित किया गया है और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह अभी कुछ ही पलों में यहाँ पे आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि नेपाली गायक श्री आनंद कार्की जिन्हें रुद्राक्ष माला और नेपाली टोपी जो कि आपको बता दें ट्रेडिशनल है वहाँ का, हमारे भारतीय अतिथियों को और नेपाली अतिथियों को एक सम्मान के रूप में ये पहनाया गया। So I like to just take a few names, but before I take your name, I will take the name of Dr. R.K. Ranjan Singh, the Honorable Member of Parliament and then Minister of State for External Affairs in our Government of India. Please give a big round of applause. So we now request our senior So here I inform to our honorable chief guest that singer from Nepal has brought the special love and affection from Nepal as a symbol of Rudraksha Mala from Pashupatinath to welcome you today, sir. Please give a big round of applause. from Pashupatinath जो कि रुद्राक्ष की माला पशुपतिनाथ से लाई गई है और ऑनरेबल जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्हें रुद्राक्ष की माला और जैसे कि ट्रेडिशनल टोपी यहाँ पहनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और सम्मान किया जा रहा है सभी गणमान्य अतिथि जैसे कि आज के कार्यक्रम में आयोजित हैं। As I requested you all, please visit the Krishna Adhikari official where the song is soon going to be also played when our honorable minister will be releasing from here. Galaxy of professor there, we have our very respected Acharya, Dr. Dayananda Saraswati ji, Swami Dayananda Saraswati ji, we welcome him as well. And we have our very respected representing Buddhism today, we have here the Acharya S.C. Punso, we welcome him as well. We have Rinpoche, Kundo Rinpoche, we welcome him as well. We have our the political counselor of the Vietnam Embassy in India, Nguyen Thi Dong Dung. So we welcome her also. We have social activists, leaders from various parties, who are representing the different political parties, and I welcome you all. And we have many Nepalese friends living. We have a really serious technical problem. We couldn't yet play the song, but I'd like to now invite our one short welcome song, dance from a We also recognize इसका ऑडियो प्लीज, इसका ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए।
एक लोकगीत या फोक सॉन्ग कह सकते हैं जो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों द्वारा, नेपाली बच्चों द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है डांस के माध्यम से। आप देख सकते हैं भारत नेपाल दोस्ती कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है। आप उत्साह दे सकते हैं भारत नेपाल दोस्ती कार्यक्रम के आयोजन के दौरान। सभी अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं और आई अतिथि आप देख सकते हैं सभी विषय कैप्चर कर रहे हैं। नेपाल के हों या भारत के सभी अतिथि क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। नेपाली जन कल्याण समिति बाल कलाकार जिसका नाम था कृष्ण थापा, दक्षा थपुरी एंड आरुषि जीसी। Now with this welcoming by a dance, I welcome here. प्यार छुपा हुआ है, दुलार छुपा हुआ है, विकास छुपा हुआ है और सबसे बड़ी बात 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत नेपाल का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नेपाल की यात्रा की है। यह दर्शाता है कि भारत के अंदर नेपाल और नेपालियों के लिए कितना प्यार समा है। आपने कहा कि मैंने ये गीत लिखा, मैं आज की नहीं है सदियों की नेपाल भारत की दोस्ती, आज की नहीं है सदियों की हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुद्र से गहरी प्रीतों की दोस्ती, आज की नहीं है सदियों की।
सीमा है तो क्या, दिलों में एक सी संस्कृति, भेदभावों को भूलकर करते रहेंगे समुद्र से गहरी प्रीतों की। नेपाल भारत की दोस्ती आज की नहीं है सदियों की। दोस्ती आज की नहीं है सदियों की। Give a big round of applause to singer Anand Karki. Thank you for his great melodious voice, which has made these simple words that I just tried to write a life he has given. उन्होंने जीवन दिया इसको, जिसमें संगीत दिया है हमारे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिन्होंने लता दीदी का जीवन का अंतिम गाना रिकॉर्ड करवाया। वाह! उनका नाम है शिखर संतोष, मुंबई में रहते हैं। उनको सौभाग्य मिला कि लता दीदी का अंतिम नेपाली गीत को भी दीदी ने नेपाली गीत गाई है, जिसको शिखर संतोष जी ने रिकॉर्ड करवाया, लता दीदी का जीवन का अंतिम गीत। तो उन्होंने इसमें संगीत दिया और आज वो हमारे साथ नहीं रह पाए संगीतकार, तो मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ वीडियो अच्छे से प्ले नहीं हो पाई, पता नहीं, शुरू में तो मेरे कंप्यूटर सही से प्ले हो रहा था, ये तार ही टूट गया। राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के उपस्थिति में अतुल्य भारत देश मेरा गीत का रिलीज होने वाला है। आप सभी को इनविटेशन, वो लोग सेलेक्टेड लोगों को इनविटेशन भेजे हैं, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को इनविटेशन मिल भी चुकी होगी और आप सभी को वहां पे मिलने की मैं उम्मीद करता हूं। साथ ही अगर आप मिल नहीं पाए तो कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको जरूर वो गीत मिलेगी और आपको वो गीत जरूर देखनी चाहिए। आनंद कार्की के और नेपाल के लोगों की एक छोटी सी तोहफा भारत माता के लिए। इसी के साथ मैं इस पूरी प्रक्रिया में, इन होल प्रोसेस, मुझे संरक्षण देकर, मार्गदर्शन करके आज के कार्यक्रम को भी बनाने में और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस तक इस गीत को पहुंचाने में मदद करने वाले आज आदरणीय माननीय राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कालिका जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। अपने शब्दों से हमेशा हमें आशीष देते हैं, तो आज भी 2 शब्दों से हमें आशीष दे। माननीय राज्यसभा सांसद श्री भुवनेश्वर कालिका जी। राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, दिल्ली स्टडी ग्रुप के प्रेसिडेंट और आज की ये सभा की आयोजक डॉक्टर विजय जोली जी और दिल्ली स्टडी ग्रुप के ऑनरेबल मेंबर्स, प्रणाम। आज शाम का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हासिल सबको नमस्कार। और फिर आज की सभा में मैंने बहुत देखा है और फिर आपका ऋषि, monk and the lamas and gentlemen on our सबको नमस्कार है। Today, on these occasions, His Excellency
Dr. Shankar P.T. Sharma ji, and Program ka President Dr. Vijay Jolly ji, our honorable this evening. Perhaps all of us will aware that songs are the binding threads. It will bind every hearts of the people of this universe. Indo-Nepal relationship. And so this is a very meaningful, and I hope the lyricist and singer will contribute further so that our relationship will be more cemented and it will carry forward. With these few words, once again I congratulate all the organizers and thank you very much. Thank you, our very respected and honorable Minister of State for External Affairs, Dr. Rajkumar Ranjan Singh sir. Your presence has been a great source of inspiration and blessing for carrying forward. Prepared for him, I would like to invite Yogesh Tandon ji from Delhi Study Group to present this memento token of love to our honorable Minister. So also I like to request Dr. Ashok Sharma ji to be ready, Suman Gupta ji to be ready, Salu, Arvind Kumar and Ms. Priti to give the token of appreciation. Please come forward. We'll give नेपाल से आनंद कार्तिक जी को इस मेमेंटो प्रदान करने में मदद करेंगे। भैया जी नाम आप बुलाइए। And Prakash, Mr. Prakash from Nepal. Mr. Prakash. So we also would like to give the token of appreciation to Mr. Prakash Thapa from Nepal. So I invite Arvind ji. प्रकाश कुंज नाम से लिरिक्स लिखते हैं और उन्हीं के माध्यम से मैं आनंद कार्तिक जी से जुड़ा हुआ हूँ। प्रकाश जी, आनंद जी ने कल इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जितनी रशियन डिप्लोमेट्स हैं उनको साड़ी पहनवाई और उनको भारत के गीत और संगीत के ऊपर उनको ऑनर किया। तो प्रीति से मुझे ये सम्मान देते हुए बहुत मैं सम्मान और हमारा सौभाग्य से मैम हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके, भारत दोस्ती नेपाल, भारत नेपाल दोस्ती को लेकर? जी, सबसे पहले नमस्कार। थैंक यू विजय जॉली सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं प्राइम कम्युनिकेशन मीडिया की ओनर फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और जैसा सबने बोला, कल्चर, संगीत, ट्रेडिशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है दो देशों को साथ में जोड़ने के लिए। तो जैसा जॉली सर ने बोला कि कल हमने इंडिया रशिया फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया, 75 इयर्स ऑफ इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन, जिसमें जॉली सर वाज द चीफ गेस्ट। और आज मुझे सर ने ये सौभाग्य दिया एज अ स्पेशल गेस्ट कि मैं सर का ऑनर कर सकूं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली थ्रिल्ड। एंड हम लोग खुद भारत नेपाल के ऊपर काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं अपनी मैगज़ीन के अंदर, वहाँ के लोगों को, वहाँ के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं थ्रू आवर वेरियस मीडियम्स। सो थैंक यू सो मच। मैं पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रीति पूजा, डायरेक्टर प्राइम कम्युनिकेशन मीडिया। Thank you. This is the final. Now our honorable guest on the dais has to make a leave. So once again. Thank you. Professor Anu Mehra. सर नमस्कार जी। सर, जैसे कि भारत नेपाल दोस्ती को लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सर, एक हिंदी सॉन्ग भी रिलीज़ होने जा रहा है यहाँ पे नेपाली आर्टिस्टों द्वारा। तो सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत और नेपाल के राजनयिक संबंध 75 वर्ष पहले बने थे और आज 75 वर्षों के बाद
भारत और नेपाल के संबंध जो ना केवल रोटी बेटी के हैं, एक पड़ोसी राष्ट्र के हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के नाते भी भारत की सेनाओं के अंदर 32,000 नेपाली गोरखा सैनिकों का होना भारत को गौरवान्वित करता है। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा नेपाली मूल के भाइयों और बहनों का बिना वीज़ा के भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, ये भी भारत और नेपाल के संबंधों की एक परिकाष्ठा है। और आज भारत और नेपाल के संबंधों पर नेपाल के प्रसिद्ध गायक कार्की जी द्वारा आज के इस कार्यक्रम में उनका सम्मानित होना, नेपाल के राजदूत का यहाँ पर उपस्थित होना, इस बात का द्योतक है कि भारत सभी नेपाली बहनों और भाइयों को अपना बराबर का भाई मानता है। इसलिए एक पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते हम हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय नेपाल। सर कुछ और हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि बीच में कुछ ऐसी कुछ त्रुटियां हो गई थी जहां नेपाल द्वारा, जैसे कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल कुछ ऐसी जैसे कि गतिविधियां करने चला था जहां भारत की सीमाओं पर सर थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा था, तो सर उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज ज़रूरत है भारत और नेपाल के संबंधों को बढ़ाने की, और कहीं पर अगर कोई विवाद हो तो उन विवादों को बैठ के सुलझाने की। भारत और नेपाल की सीमाएं और उनके आर पार जाने वालों को किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वीज़ा की आवश्यकता होती है तो चीन में जाने के लिए भारतीयों को भी और नेपालियों को भी आवश्यकता होती है। इसलिए जो मसले दोस्ती के लेवल पर सुलझ सकते हैं, हम उनको सलाम करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से आए हुए सभी मेहमान यहाँ पे एक कर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और विजय जॉली जी जो कि भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं, वे उनका सम्मान कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। मैं सर बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं आज के कार्यक्रम को देखिए, आज की ये जो भारत नेपाल की मैत्री के ऊपर रचित ये बहुत ही सुंदर गाना जो कि नेपाली सिंगर श्री आनंद कर्की जी ने गाया है, और बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही समादृत हुआ है आज इस सभा में, और उसका आज उद्घाटन हुआ। और इसके ज़रिए हमारे भारत और नेपाल की जो मैत्री है, जो दोस्ती है, और बढ़ोतरी होगी, और नेपाल और भारत के पीपल टू पीपल जो रिलेशन है, संबंध है, और ज़ोरदार होगा और ताकतवर होगा। सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, this is very fantastic. I think the music is one of the components of economic diplomacy and the diplomacy that we can promote between the two countries. सर आज के कार्यक्रम से क्या भारत और नेपाल की दोस्ती में और घनिष्ठता होगी? नहीं, this is a one step forward. I think we have to do and then work on several different areas, and this is one of the fantastic way of connecting the people. आज के कार्यक्रम को लेकर आज बहुत खुशी का दिन है। एक भारत नेपाल की दोस्ती का गीत जो हम लेके आए हैं अपने दोस्ती को भारत में, और ये गाना बहुत अच्छा गाना हो, आप लोग सुने सब लोग, और इसकी प्रतिक्रिया भी दें। कैसी आवाज़ है मेरी, भारत में भी गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ। सो ये प्रेम और एक प्यार हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। सर हम तो पहले ही प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी आवाज़ किशोर कुमार और कुमार सानू जी से बहुत मिलती है। थैंक यू, मुझे सब वही बोलते हैं, वो क्योंकि गुरु किशोर कुमार ही हैं मेरे, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। सो हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं नेपाल में प्लेबैक सिंगर हूँ, और वहाँ पे काफ़ी मेरे गाने मशहूर हैं, और
5000 से ज़्यादा मैंने गाने गाए हैं नेपाल में, फिल्मों में, प्राइवेट सब करके। सो मेरा ये इंडिया भारत में मैं भातखंडे म्यूज़िक क्लास भी लिया हूँ, मैंने म्यूज़िक सीखा हूँ और भारत में पहली दफ़े ये गाने को मैंने रिलीज़ किया है। आप लोग इसको पसंद करें, यही कहना चाहता हूँ। नेपाल भारत की दोस्ती सदियों से प्यार की दोस्ती। थैंक यू सर, नमस्कार। तो कृष्ण सर नंबर है ना, इस पे ज़रूर आप वो भेजिए। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? और सर, आपने ही गाना लिखा और शब्दों में पिरोया और सर बहुत अच्छे से हमारे गायकार कार्की जी ने गाया है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसी गाना जो आज रिलीज़ हुई है, उस प्रकार की गाना हमारे दो देश के बीच में होती रहनी चाहिए। वास्तव में कहा जाए तो मैंने ऐसा गाना सुना नहीं पहले कभी कि दो देश के बीच के दोस्ती को दर्शाने वाले। तो ये छोटी सी शुरुआत हमने करने का हमें सौभाग्य मिला, तो आगे भी लोग इसको करें और दो देश के सुमधुर संबंध को और सुमधुर बनाए और प्रगाढ़ बनाए। और हमारे देश के बीच में छोटी मोटी जो भी ऊपर नीचे की बातें होती है वो बस छोटी मोटी राजनीति है, लेकिन अदरवाइज़ हम दो देश एक समान है और हम दो देश शांति के लिए एक बहुत बड़े पैगाम दे सकते हैं, दो देश मिलकर, और हमें मिलकर रहना चाहिए, ये हमारी संदेश है। जी सर, जैसे कि इस गाने को लिखने के लिए क्या प्रेरणा रही आपकी, ये थोड़ा सा जानना चाहिए। प्रेरणा दो देश की दोस्ती, देखो हमारी दो देश की दोस्ती जो सदियों से चलती आई है और उसमें कभी कभी जो धूमिल छाती है कि अभी जो कोरोना काल के समय में नक्शा को लेकर जो थोड़ी सी टसल चली थी, उस समय में हमें एक दिल ने कहा कि कुछ तो करो भाई, कि दो देश के बीच जो संबंध में थोड़ी सी खलल आई है वो ज़्यादा देर तक रहनी नहीं चाहिए और ये जनमानस में जानी नहीं चाहिए। और जो जन जन तक हमारी जो एक संबंध है, रोटी और बेटी के रिश्ता और प्यारा रिश्ता, इसमें कोई खलल आनी नहीं चाहिए। इसलिए इस भावना से हमने इस गीत को लिखा। सर, हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णाधिकारी है। मैं बीते 15 साल से भारतवर्ष का ही मुख्य प्रतिनिधि बनकर शांति अभियान को चलाता हूं। यह शांति अभियान विश्व के 194 देश में काम करता है और इसका संस्थापक कोरिया से डॉक्टर सन मिंग मून, डॉक्टर आकजान मून है और मुझे भारत का प्रतिनिधि बनाकर मैं इस देश में 15 साल से अपने शांति अभियान में कार्यरत हूँ और उसी के चलते शांति के पैगाम देने के लिए गीत को भी रचा हमने। क्या कुछ कहेंगे भारत नेपाल दोस्ती को लेकर? और हमारे साथ जैसे कि आप लोग आए हैं, हमारे भारत आए हैं एक अतिथि के तौर पर, सर क्या कुछ कहेंगे? और हम ये है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच भी है और भारत नेपाल का भी है और हमें यहाँ आना ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार साथ दे रहा है। साथ देके तो चलेगा देश, नहीं तो नहीं चलेगा। बस वही है जी, हम वही चाहते हैं। का ये जो जैसे कि ये आयोजन रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, कैसे इसको स्वागत करते हैं आप? इसको तो मैं बहुत बड़े स्वागत करता हूँ। वैसे मैं मीटिंग ऐसे में आता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि ये नेपाल के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। नेपाल और भारत तो पड़ोसी ही है, बस यही है जी। अपना नाम बता दीजिए। यहाँ मेरा नाम सोनम पेगेल, आई एम टिबेटन। हाँ जी, ओके। Our His Excellency the Ambassador of Nepal to India, Dr. Shankar Prasad Sharma. We welcome him on the stage. हिंदी और इंग्लिश में बोल दीजिए। अच्छा, बोलेंगे? अरे वाह। जी बताइए जी। जी, कैसा लग रहा है आज भारत नेपाल दोस्ती का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? क्या ये तो बहुत अच्छे कार्यक्रम है। ये जो दिल्ली स्टडी ग्रुप ने कार्यक्रम किया है, मैं तो यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। मैं वैसी तिब्बत के भूतपूर्व उपसभापति हूँ पार्लियामेंट का और यहाँ कई वर्षों से तिब्बत और भारत के साथ संबंध और नेपाल के साथ मैं बहुत कुछ काम करते रहता हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है और कृष्णा अधिकारी जी ने कई बार कार्यक्रम में बुलाया। तो नेपाल और भारत का बहुत संबंध है, नेपाल और तिब्बत का बहुत संबंध है, तो इसलिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जी जी जी। और इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए।
क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम से ही दो देशों के बीच में ज़्यादा संपर्क होता है, ज़्यादा संबंध होता है संस्कृति के माध्यम से। केवल व्यापार से नहीं, केवल व्यापार से नहीं, परंतु पर्यावरण और संस्कृति से ही नज़दीक लाता है और आत्मा नज़दीक से लाता है। और नेपाल एक संस्कृति देश है, भारत भी एक संस्कृति देश है। नेपाल एक धर्म देश है, भारत भी एक संस्कृति और धर्म का देश है, और तथागत बुद्ध का दोनों जोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यापार में भी जैसे कि साझा होने में जैसे कि और आसानी होगी। इसी के साथ साथ व्यापार तो अपने आप जुड़ जाता है। व्यापार तो जब जैसे तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, लोग जाएंगे, उसमें अपने आप में आमदनी हो जाता है लोगों के लिए, वहाँ सभी लोगों का आमदन हो जाता है, यहाँ भी आमदन हो जाता है। तो व्यापार और पर्यावरण और संस्कृति ही मिलकर ही देश को विकास होता है, देश के साथ जोड़ता है, संबंध होता है। जी जी जी। अभी बीच में जैसे कि चीन ने हस्तक्षेप किया था, वो चाहता था कि नेपाल से भारत के थोड़े से रिश्ते खटास में पड़ जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ? चीन तो हमेशा दूसरों को उकसाता है, संपर्क तोड़वाता है। भारत और ये जो हिंदुस्तान और नेपाल के जितना संबंध है, वो तो चीन तो बाद में जब तिब्बत को कब्जा किया तब ना आया। इससे पहले तो चीन नेपाल का सीमा में नहीं था। नेपाल के सम्राट और तिब्बत के सम्राट का संबंध है, इतिहास सीमा जो है नेपाल और भारत के बीच में है, नेपाल और तिब्बत के बीच में था। जो आज हम चुमुलहामा बोलते हैं, चुमुलहारी बोलते हैं, वो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वो तिब्बत का और नेपाल के बीच के था ना। वो तो चीन तो अभी आया, तो वो तो एक दूसरों को कब्जा करने के लिए चेष्टा करते हैं ना। तो इसलिए चाइना तो कभी भी संपर्क विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका को कंगाल कर दिया, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, बाकी देशों को भी कंगाल कर देंगे। तो नेपाल भरोसा नहीं करना चाहिए बस। और नेपाल एक ऐसा देश है जो कि ब्रिटिश राज के सम्राट में भी अंदर नहीं गया, कब्जा नहीं किया। नेपाल वॉज बिकम इंडिपेंडेंट। तो आज के कार्यक्रम को लेकर आप बेहद ही खुश हैं? मैं इस कार्यक्रम को आयोजकों को साधुवाद देना चाहूँगा, और जो आज जो भागीदारी है इस कार्यक्रम का, संगीतकार, कलाकार, मैं उन सबों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, मैम, नमस्कार। अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत नेपाल दोस्ती का भारत नेपाल दोस्ती को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी ये प्रोग्राम के आयोजकों को, डॉक्टर विजय जॉली जी को। और आज का जो विषय है भारत नेपाल दोस्ती, मैं कहती हूँ जहाँ पर आतंकवाद का माहौल हो, जहाँ पर दुश्मनी का माहौल हो, आसपास दहशत हो, और वहाँ पर जब दोस्ती की बात की जाए तो इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। दोस्ती तो सभी संबंधों को जोड़ती है। और इसी के साथ मैं अपना परिचय देते हुए बताना चाहूँगी कि मैं टीनापुरी जिंदल हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब वुमेन काउंसिल दिल्ली से हूँ, और मैं पत्रकार भी हूँ, और मैं समाज सेविका भी हूँ, और मैं बहुत से कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लिप्त हूँ। और मेरी कोशिश, निरंतर प्रयास यही रहता है कि समाज में फैली कुरीतियों को हम किस प्रकार से आपस में मिलजुल कर दूर कर सकते हैं, सौहार्द की, भाईचारे की भावना को बढ़ा सकते हैं, और धर्म और संस्कृति का हम संचार कर सकते हैं। और इसी भावना को लेते हुए मैं अपने देशवासियों को बधाई देती हूँ, नेपाल के सभी वासियों को बधाई देती हूँ, भारत के सभी वासियों को बधाई देती हूँ, जो भारत और नेपाल दोस्ती का आज ये सुंदर प्रोग्राम रखा गया है, और इतने सुंदर गीत के साथ इसको संजोया गया है। और धन्यवाद करती हूँ सभी अतिथिगणों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं और राष्ट्र में दोस्ती की भावना को देते हुए एक साथ एकजुट होने का संदेश देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे भारत नेपाल दोस्ती को लेकर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना है आपका अपने वक्तव्य? मैं योगेश टंडन, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टडी ग्रुप। मैं कहना चाहूँगा भारत नेपाल की सिर्फ दोस्ती नहीं है, बड़े गहरे संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। आप जानते ही हैं, राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था। सीता जी के मायके आज के नेपाल में हैं, तो इससे बड़ा संबंध तो कोई हो नहीं सकता।
और जहाँ तक बात राजनीतिक संबंधों की है, भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है और हमेशा देता रहेगा। अपना परिचय दीजिए। योगेश टंडन, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली स्टडी ग्रुप। स्वामी जी नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं आज के कार्यक्रम में बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे नेपाल और भारत का जो मैत्री है वो आज की नहीं है, शायद लोग बहुत कम लोग बोले। ये आप जानते होंगे कि बल भारत और नेपाल और बिहार एक में था। उस समय जब युद्ध हुआ था तो ये नेपाल नरेश जिसमें थे विराट थे, उन्होंने द्रोणाचार्य को दुत्कार दिया। तो द्रोणाचार्य ने युद्ध करके और बिहार को अलग किया, नेपाल को दो फाड़ करके बिहार बनाया। और ये हरियाणा की देन है। बिहार जो है, आज लोग बिहारी बिहारी बोलते हैं, हरियाणा वाले ये नहीं जानते कि हरियाणा जो है बिहार का देन है। हरियाणा जो है नहीं रहता, अगर द्रोणाचार्य नहीं रहता तो बिहार नहीं रहता, बिहार नहीं रहता तो नेपाल भी नहीं रहता। ये भारत जो है और नेपाल की दोस्ती आज की नहीं है, इस सतयुग से चली आ रही है और ये दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। हमारी रोटी बेटी से नहीं, संस्कृति एक है, खान पान एक है, रहन सहन एक है और हम दोनों राष्ट्र एक हैं। हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद विश्व हिंदू महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के लिए मैं NRI भारत संघ जो बनाया हूँ उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं पूरे विश्व को अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव ही कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हूँ। और हमारे राजघराने के मेरे मित्र हैं, इनसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जैसे जो गौशाला चलाते हैं उसमें ये बहुत मदद करते हैं। मैं इसी तरह से चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में सभी लोग सुखी रहें और सभी एक साथ मिल करके रहें, क्योंकि हमारी भारत की नारा है वसुधैव ही कुटुम्बकम। एक आपके चैनल से बहुत मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ कि जितने नेता हैं ये पर्यावरण खिलाते हैं। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से और पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व से कि एक MP 1000 पेड़ लगाए, एक विधायक 500 पेड़ लगाए, एक मुखिया सरपंच 250 पेड़ लगाए, भारत में क्रांति आ जाएगी और विश्व में सबसे बड़ी ये बात हो जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के पर्यावरण संबंधित जब हम लोग एक रहेंगे तो और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि देखिए आने वाला समय अभी आ रहा है पितर पक्ष का। ये लोग नहीं जानते हैं, ये मैकाले के संस्कृति वाले, कि कौवे को हम क्यों बलि देते हैं, कौवे को क्यों हम खीर खिलाते हैं, क्योंकि कौवे जो है वो बरगद के और पीपल के वृक्ष के वाहक है। अगर कौवे खत्म हो जाएंगे तो न पीपल रहेगा न बरगद रहेगा। इसलिए मैं भारतवर्ष के हर एक आदमी को बोलता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि बड़े दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे और किस तरह से जिया जाए, क्योंकि पीपल और बरगद 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये पितृपक्ष का ये पक रखा, क्योंकि कौवे जो है भाद्रपद में बच्चे देते हैं तो वो आश्विन में प्रथम पक्ष में उनको अच्छा भोजन चाहिए, तो दूध भात हम कौवे को खिलाते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु। हर हर महादेव। सर एक बाइट ले सकते हैं आज के? सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि भारत नेपाल दोस्ती को लेकर कार्यक्रम आयोजित? देखिए, भारत नेपाल की दोस्ती इस तरह से जैसे कि हम लोग चना और आटा मिलकर काम करते हैं। सीता और राम को कोई अलग नहीं कर सकता। जनकपुर हमारी रिश्तेदारियां हैं, नेपाल के संबंध हमारे आज के नहीं सदियों के हैं और रहेंगे। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नेपाल और भारत में कोई हमारी गोरखा रेजिमेंट ही है और भारत नेपाल का हमारा एक हेड है तो एक टेल है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो हेड टेल रहेगा मतलब हमारा। अब उसमें आप हेड है हिंदुस्तान को मारो, टेल नेपाल को मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोस्ती नहीं है, ये रिश्तेदारी है। ये एक आपस में दिल और हार्ट और ब्रेन एक है, मतलब हम अलग हो ही नहीं सकते।
हैं। अब कौन किससे दोस्ती कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो डिप्लोमेटिक है, वो मैटर अलग है, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन हमारी जो सियासत है, हमारी जो दोस्ती है, उसका पैमाना अलग है। हमारी रिश्तेदारियाँ वहाँ हैं। नेपाल को बिहार, बिहार को नेपाल, राजस्थान, उत्तराखंड, हमारी तमाम वहाँ की रॉयल फैमिली की रिश्तेदारियाँ सब हमारे हिंदुस्तान में हैं। हमारी वहाँ शादियाँ होती रहती हैं। हमारी चित्तौड़ की, हमारी चित्तौड़ से नेपाल का वंश जो है वो चित्तौड़ से बना है। शाह वंश जो है वो चित्तौड़ का है, महाराणा प्रताप का वंश है वहाँ पे। और नेपाल की राजकुमारी कर्ण सिंह जी की वाइफ वहीं की हैं। हमारी जैसलमेर महारानी वहाँ की हैं। तो हम ये संबंध अलग होने का आप कैसे सोच सकते हैं? दोस्ती नहीं है ये रिश्तेदारियाँ हैं। दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, रिश्तेदारी अलग चीज़ होती है ना। दोस्ती का मैटर क्या है क्या नहीं है, लेकिन रिश्तेदारियाँ और नेपाल भारत एक ही है, अलग नहीं है। इसको आप अलग मान के नहीं चलते। मतलब परिचय भी दे दीजिए। मैं KN सिंह राठौर, डायरेक्टर वर्ल्ड मास कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा। ब्रह्मांड पूरा एक है, दुनिया पूरी एक है, दुनिया ग्लोबल है। दुनिया में हम लोग सब वासुदेव कुटुंबकम, हम एक हैं, मतलब हम कहीं अलग नहीं हैं। कोई लड़ना चाहे हमसे तो अलग बात है, लेकिन हमारी परिस्थिति में और हमारी सियासत में और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में लड़ाई कहीं नहीं है। हम लड़ाई के खिलाफ हैं हमेशा। हम प्यार चाहते हैं, प्यार दें और प्यार लें। आप एशियन यूनियन के अध्यक्ष हैं हमारे सलूजा साहब, इनकी वाइट। आप भी अपना वक्तव्य दें आज। सर, मेरा नाम JS सलूजा है। मैं प्रेसिडेंट हूँ एशिया पैसिफिक एसोसिएशन का। और नेपाल, अगर सही पूछो तो कोई लोग मुझे बोलते हैं नेपाल आपके ससुराल है क्या? क्योंकि नेपाल में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, मैं 20-25 बार गया हूँ। मैं इंजीनियर हूँ। और आपके यहाँ की जो इंडस्ट्री है स्टील की, उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है हम जाके उसको ठीक किए हैं। क्योंकि जैसा सिंह साहब ने बताया, हम सब एक हैं। ये तो पॉलिटिकल लोगों ने हम लोग को अलग कर रखा हुआ है। सही पूछो, हमारी जात, हमारा गोत्र, हमारे हर चीज़ इतनी मिलती जुलती हैं। कई बार तो मैं लगता है जब नगरकोट से लेके जब मैं जीतपुर तो गया, काठमांडू से होकर के, तो रास्ते में जो मिलते बोले, सुलेहा साहब आप दिल्ली से आए? हाँ, पर आप तो लगते नेपाली हैं। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। मैं सच बताऊं आपको मैं कि नेपाल के साथ हमारे संबंध आदि काल से चले आ रहे हैं। और ये मैं कहता हूं, अगर हम लोग पॉलिटिक्स को छोड़ दें तो हम सच में फिर एक बन करके इस देश को मिल करके नेपाल को और भी ऊंचा उठाएंगे हिंदुस्तान से मिलकर। बहुत खुशी होगी मुझे तो, और मैं तो चाहूँगा कि ये दोस्ती बनी रहे हमें। सर, पुनः अपना परिचय दें। मैं आपको कार्ड दे देता हूँ मेरा। सर नमस्कार। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को? किस संदर्भ में देखते हैं, कैसे आपका लगता है? मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, फिल्में भी बनाता हूँ और संगीत में भी रुचि रखता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। हमारे भाई हैं, बहुत बड़ा सिंगर है मन्नू जी, ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, बॉडी बिल्डर। तो हमारा भी एक यही है कि भारत और नेपाल के बीच जो हमारी दोस्ती है वो अटूट है और ये दोस्ती बरकरार रहे। और जहाँ तक हम लोग से सहायता होगा संगीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, हम पूरा योगदान करेंगे। साथ ही साथ मैं भारत के एक गेम को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो ओलंपिक गेम में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहूँगा नेपाल वासियों को भी मैं उस गेम में लाऊँ और उनको भी सौभाग्य मिले कि वो दुनिया में नाम करे और ओलंपिक गेम जीते। तो मेरा सपोर्ट इस माध्यम से करना चाहता हूँ। अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं प्रेसिडेंट हूँ एमचर डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ओलंपिक गेम में है वो ब्रेक डांस, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी बिटिया ने भारत को 5 गोल्ड मेडल दिवाया है इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिसका नाम है कुमार अंजलि का। तो हम खेल से भी रिलेटेड। थैंक यू सो मच। सर, आप भी चंद शब्दों में कुछ बोलना चाहिए? अपने परिचय के साथ। मैं श्री अरविंद जी के साथ आया हूँ और यहाँ पे आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। सभी लोग बहुत अच्छे प्यारे लोग आए हुए हैं और दिल से रिस्पेक्ट है, सबको प्रणाम करता हूँ मैं। सर थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है मनु सिंह। और आप सर, आपका परिचय? मेरा नाम करण अरोड़ा है। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। अरविंद भैया के साथ यहाँ आए, भारत नेपाल दोस्ती का ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग यही उम्मीद करेंगे हमेशा कि दोनों कंट्रीज़ की दोस्ती हमेशा ऐसी बनी रहे, आपस में प्रेम प्यार रहे। और आनंद जी का जो सॉन्ग था वो हमें बहुत प्यारा लगा। भी यूट्यूब पे हम लोग वो सुनेंगे, शेयर भी करेंगे जितना हो सकता है। थैंक यू। कौन से चैनल आपका? हम सबका
सर नमस्कार। नमस्कार सर जैसे कि आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ भारत नेपाल दोस्ती, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? भारत नेपाल का दोस्ती तो काफ़ी सदियों पुराना है और बीच में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है जिसमें कुछ गर्मा गर्मी होती है, लेकिन हम सभी का उत्तरदायित्व है कि इस को दूर करते हुए हम दोस्ती निभाएं और हमारी संस्कृति और वहाँ की संस्कृति में काफ़ी समानता है और आज को ये कार्यक्रम था, इस बात को दर्शाता है कि हम सब लोगों को इस दोस्ती को और प्रगाढ़ करना चाहिए। सर पुनः अपना परिचय भी दे दीजिए। डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती उत्तर प्रदेश। सर आज भारत नेपाल दोस्ती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और भारत और नेपाल तो मतलब जब से मेरे ख्याल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही छोटे भाई बड़े भाई की तरह हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और जो बीच में थोड़ा सा खटास आया था दोनों कंट्री बीच में, लेकिन ये वाला जो आज का प्रोग्राम है उसको फिल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और भारत तो हमेशा ही नेपाल को छोटा भाई समझता रहा है और उनको हेल्प क्या वी आर ए मतलब उसमें कोई हेल्प नहीं है, दोनों छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में है। और ये प्रोग्राम जो आज किया है इतना बड़ा प्रोग्राम, डेफिनेटली टू हेल्प टू ब्रिंग द बोथ पीपल ऑफ बोथ कंट्री क्लोज टुगेदर, एक साथ लाने में बहुत हेल्प करेगा। अपना नाम भी बता दीजिए सर परिचय के साथ। डॉक्टर अशोक शर्मा, सेक्रेटरी DSG दिल्ली स्टडी ग्रुप। कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को? आपका भी वक्तव्य बहुत मायने रखता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ के बहुत अच्छा लगा और स्पेशली भारत और नेपाल की दोस्ती का एक्चुअली ये दोस्ती तो मतलब बहुत पुरानी है। हम लोग और आप लोग तो कभी थे ही नहीं उस टाइम में, तब की है। जैसे सीता माता और भगवान राम की सीता माता की नंसार नेपाल में है और है ना भगवान राम का भी वहाँ से कनेक्शन है। तो ये तो एक ऐसा रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, जिसे हम और आप तो क्या कोई भी मतलब अलग नहीं कर सकता। और हम लोग तो सिर्फ मात्र पात्र हैं और इस रिश्ते से ये भी है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने और है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हम लोगों को बताया है, इससे भी बहुत लोगों को बहुत इफ़ेक्ट आया है और इससे सभी लोग अवेयर होते हैं, सब लोगों को पता नॉलेज बढ़ती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है और ये दोस्ती तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरे एक बेटा है। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजू शर्मा है और मैं यूपी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हूँ। मैं बुलंदशहर में हूँ, अभी बुलंदशहर वैर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुलंदशहर में वैर की मैं CSC पे हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया भारत नेपाल का संबंध के लिए आज जो प्रोग्राम बनाया है हमारे कृष्ण अधिकारी सर ने जो रखा है, आज प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। हमने भी अपने बच्चों का परफॉर्मेंस दिया था, जो 3 बच्चे डांस कर रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। मैं फर्स्ट था यही एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, विधानसभा में, और यहाँ बुराड़ी में रहता हूँ। धन्यवाद आपका। हम वो छोटे से बच्चे से भी बात करना चाहेंगे जिन्होंने बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था गाने पे, क्या कुछ उस शब्द के मायने हैं, थोड़ा बताएंगे? जो गाना तैयार किया आप लोगों ने, बच्चों ने सभी, उसमें एक तीज है, तीज नेपाली जो हमारे देश के नेपाली औरत ने तीज का एक व्रत रखते हैं। उस टाइम में थोड़ा सा लोग ऐसे करते हैं कि नाच गान करते हैं, उस टाइम में बनाया गया गीत है। तो उस गाना में ही हमारे बच्चों ने प्रिपेयर करके लेके आए थे। वैसे तो आप लोगों ने देखा, समझे कि नहीं समझे, ये नेपाली लैंग्वेज में थे। हाँ, तो फिर नेपाली फोक गीत था बिल्कुल। यस, तो ये एक तीज महोत्सव को लेकर एक गाना था। अभी तीज 31 को था। तो ये गाना उसी से उत्प्रोत था बिल्कुल। यस, उस टाइम में बनाया गया गाना है, तीज को फोकस करके बनाया गया गाना है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोनिका है। और बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरुषि है। अच्छा, कैसे लगा आपको आज के कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस देके अपनी कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। ओके।
हो रहे हैं, मतलब अच्छा है। जी 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 जी। तो और जैसे कि आगे भी ऐसे अगर कार्यक्रम होते रहे तो और दोस्ती में घनिष्ठता आएगी? आएगी, ये तो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, है ना। एक बार हो फिर ऐसे हो गया तो कुछ नहीं होगा, ये फॉलोअप होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, तब तो अच्छा होगा। जी जी। सारे वो भूल गया ना, हाँ। ये रिपीट होगा, रिपीट होना चाहिए। और जो गायकार आए थे आनंद कार्की जी, उनका गाना कैसा लगा आपको? वो तो हमारा पहचान है ना, हाँ। तो पहले से आज नहीं, पहले से अच्छा लगा। हाँ जी 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 जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरे नाम विष्णु घिमिरे बिके। विष्णु घिमिरे बिके। जी 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 जी। तो आप नेपाल से आए हैं? नेपाल से। जी जी, धन्यवाद। नेपाल से आए हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था। नेपाल और भारत को एकता तो है नेपाल और भारत में। आज के जो प्रोग्राम ने और ये जो गाना इन्होंने बनाया है, इसने और मजबूता लाया है नेपाल और भारत के बीच की, और मजबूती आएगी करके हमें विश्वास है। क्योंकि मैं भी नेपाल की लड़की हूँ और इंडियन से शादी हुई है मेरी, तो इसके हिसाब से मुझे तो और रोटी बेटी के संबंध जो बोलते हैं उसको वो कायम रहे तो और बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। जी। सब कुछ आता है मुझे, कोई बात सर थोड़ा सा बोल दीजिए आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी आकर यहाँ पर। हाँ। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो नेपाल के इतने बढ़िया सिंगर भी होते हैं, मैंने आज उनको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। और उन्होंने हिंदी में भी गाया और अपनी में भी गाया, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे रिश्ते कायम रहें। हाँ। और नेपाल और भारत की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम जयप्रकाश है। धन्यवाद सर। ओके। भारत नेपाल दोस्ती को लेकर बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन श्री विजय जॉली जी जो कि भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं उनके तत्वाधान में किया गया। और आपको बता दें कि भारत नेपाल दोस्ती जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया इसमें एक बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग भी जैसे कि रिलीज़ किया गया जो कि हिंदी में है और नेपाली सिंगर आनंद कार्की। और जैसे कि आपको बता दें कि जो भारत में का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री कृष्ण अधिकारी जी, दोनों ने मिलकर इस गाने की रचना की और बहुत ही सुंदर तरीके से ये गाना गाया गया। और आपको हम जैसे कि दिखाएंगे और बताएंगे भी कि इसके बोल जैसे कि जो गायकार हैं आनंद कार्की जी उनके मुख से भी सुनेंगे आप। और भारत और नेपाल में आपसी संबंध और मजबूत हो इसके लिए ये गाना बनाया गया। और वैसे तो भारत और नेपाल में आपसी जो संबंध है वो सदियों से बहुत ही अच्छे चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी खटास पैदा हो गई थी जिसके चलते इस नेपाल से आए जो सभी अतिथियों ने बताया कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सदा अच्छे बने रहें और परस्पर उनमें सामंजस्य बना रहे। इसके लिए भारत नेपाल दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित किया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।